Hi everyone, welcome. My name is Amit Surana. Today we are going to see how to properly fill CAT 2023 application form. So I'm going to fill my own application form here to show you how we would do it and what would be the right way of doing and what would be the places where we could end up making a mistake. So let's get started. For people who are panicking, sir, that we are already late, don't worry. The last date form to submit the form is September 13th, but I would recommend that you start filling the form maybe after watching this video. Yeah, within a couple of days, ensure that you fill in the form so that you don't end up getting your second or the third preference city and usually get the first preference city there. That being said, let's get on. So if we go to the official website, right now, some of us are facing this issue with the official website that when you go to the official website and click on new candidate registration, it doesn't work. See, right now I'm doing it and it doesn't seem to be working. One of the few reasons could be that you would have earlier registered or you would have earlier visited this website and there could be some stored cache there. Two things you can do: you can either go ahead and delete the cache and re-register, or the other thing I would recommend, the more easier way out, is to go to an incognito window. So today we are going to use an incognito window for something very positive. चलो तो शुरू करते हैं. यहाँ पे you would notice that there's a new candidate registration, and if you're somebody who's already registered but haven't filled the form and waiting, then this is where you would log in. This is not for us. Registration for non-IM institutions. This is for institutions to register themselves as non-IM CAT accepting institutions. Okay, so this is not what you should be worried about. Forget about this. This is if you've written CAT 22 and you want to download the score. If you still have the login and ID password, you can go ahead and do that. So what we want right now is either the first one or the second one. Second one if you've already registered. फॉर कैट 23, अगर आपने कैट 22 के लिए रजिस्टर किया है और दोबारा आप दे रहे हैं, इफ दिस इज योर सेकंड और द थर्ड अटेम्प्ट फॉर कैट, यू हैव टू रजिस्टर अगेन. आप पुराने रजिस्ट्रेशन से दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते, आपको दोबारा रजिस्टर करना होगा. ओके, सो वी क्लिक ऑन दिस, वी गेट दिस पेज. Don't worry if you end up you're seeing that the website is loading a little slowly, it's taking a lot of time. Don't worry about it. Don't try to refresh. Don't be in a rush. आराम से करो, धीरे धीरे से करो. And have a look at the instructions. Please read the instructions very carefully. You need to have one of these browsers, है ना? You have to have one of these browsers to fill in the application form. I'm using Google Chrome. All of the browsers are available on the internet for free. Download and use them. ठीक है? You can also do it with your phone, but I would recommend you not do it with the phone. If you do not have a PC or a laptop, borrow कर लो किसी से. फोन से मत करना, क्योंकि कई बार I've tried with my phone and I have faced a lot of issues, है ना? कई बार फॉर्म्स लोड नहीं होते, कई बार लिस्ट नहीं लोड होती है, बहुत इश्यूज होते हैं. सो इट इज सेफ इफ यू कुड यूज समबडीज लैपटॉप और अ पीसी टू डू इट, है ना? बट मेक श्योर दैट इट इज समवन यू ट्रस्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. फील्ड्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, द फॉर्म विल नॉट लोड अहेड, आगे नहीं बढ़ेगा unless and until all the mandatory fields are filled. Read the below instructions carefully before filling the form. Candidate has to fill the below mentioned details to receive user ID and password. तो आपको एक यूजर आईडी मिलेगा और आपको एक पासवर्ड मिलेगा ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. बट प्लीज रिमेंबर, दिस पासवर्ड इज नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज. तो आपको ये सेफ रखना होगा एंड आपको ये ऐसी जगह पे रखना होगा जो इजीली एक्सेसिबल है ना? ऐसे नहीं कि आप किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लिए और भूल गए और वो पेपर कहाँ गया पता नहीं. या इतना भी सेफ नहीं करना है उसे कि आप बैंक के लॉकर में जाके रख के आ जाए कि भाई ये मेरा फ्यूचर है. Yes. Candidate will receive user ID and password on registered email address and or on the registered mobile number. ये और का क्या सीन है? If you are somebody who is an overseas candidates will receive both user ID and password only on the registered email address, इसलिए ये और है. ठीक है? Candidate can log in with the user ID and password to complete the application. तो जब आप एप्लीकेशन एक साथ में भर रहे हैं तो ठीक है, बट दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ता है to see if you've received the admit card, to download the admit card. आगे भी आपका स्कोर देखने के लिए you will have to use it, है ना? Candidate must provide correct name, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
योर नेम शुड बी अकॉर्डिंग टू द आईडी दैट यू हैव, है ना, जो आईडी आप प्रेजेंट करेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट, मोबाइल नंबर शुड बी करेक्ट, ईमेल एड्रेस शुड बी करेक्ट। अगर आपके नेम में या डेट ऑफ बर्थ में लेट्स से आपके किसी आईडी में कोई और नाम से है, दूसरे आईडी में कोई और नाम से है, कहीं पे इनिशियल है, कहीं पे आगे है, पीछे है, कहीं पे आपका फुल नेम पूरा आ रहा है, कहीं पे आधा आ रहा है, यू हैव द टाइम टू गेट इट चेंज्ड। यस, कहीं पर भी आपको चेंज करवाना है, आपके पास टाइम है अभी भी टू गेट इट चेंज। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू यूज़ द राइट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि यही आप आगे भी यूज़ करने वाले हैं। मोबाइल नंबर आप कौन सा देंगे? जो इजीली एक्सेसिबल हो, जो कभी भी बंद ना पड़ा हो, बिकॉज यू विल बी रिसीविंग मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस अबाउट योर यूज़र आईडी पासवर्ड, एंड आगे भी काम आएगा। व्हेन द एडमिट कार्ड इज अवेलेबल यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। सेम गोज विथ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ऐसा मत देना जो आपके सोशल मीडिया पे है, जो आपके बैंक्स वगैरह में है, अदर प्लेसेस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्पैम हो जाता है। इफ़ पॉसिबल क्रिएट अ न्यू ईमेल एड्रेस जिसका पासवर्ड आप कहीं पे सेफली लिख के रखें ताकि आप ना भूलें। बट आई वुड रिकमेंड दैट इफ़ यू आर यूजिंग, यू शुड बी हैविंग अ सेपरेट ईमेल एड्रेस जो आप हर जगह पे ना दे जहाँ पे वो सब्सक्रिप्शंस वाले मेल्स आते रहते हैं, राइट? सो प्लीज़ गिव एन ईमेल एड्रेस that is free from spam but also easily accessible for you, ठीक है? and these four things can never be changed। अगर आपने गलती से भी गलत नाम टाइप कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे कर दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस will not be changed, okay? so please be very very careful when you fill this up। चलो अब फटाफट fill करते हैं। I am going to fill up this using my name in the official ID। Candidate name should be entered exactly as it appears in 10th या SSC certificate। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। 10th या SSC सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल करो। अगर आपके बाकी आईडीज में सिमिलर नहीं है नेम, दैट्स ओके, बट इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू 10th और SSC सर्टिफिकेट ओनली, ठीक है? and only alphabets are allowed if you, I don't think anybody has any special characters in their name, but आप डॉट वगैरह भी अवॉइड करें तो बेटर है, ठीक है? नाउ विद द डेट ऑफ बर्थ आई एम नॉट गोइंग टू टाइप इट हियर। टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो, या टाइप करना है टाइप कर सकते हो, बट टाइपिंग सीम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, सो वी आर गोइंग टू गो विथ सेलेक्शन ऑफ द ईयर। सो 1900s, yeah, you go to 1900s and then you select whatever is your date of birth। so year आपने select कर लिया, फिर आपने month select किया, फिर आपने date select किया, ठीक है? you have to be very careful। आप एक बार ही check कर लें before moving ahead if your date, month and year is according to your ID। now you go for the email address। please ensure आप email address type करते वक्त कैपिटल लेटर्स ना यूज़ करें, एंड इंश्योर दैट योर ईमेल एड्रेस इज़ अ लिटिल प्रोफेशनल। अगर आपके पास फोर्टनाइट वगैरह का या कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है जो आपने गेमिंग के लिए क्रिएट किया है, प्लीज़ डोंट यूज़ दैट, ठीक है? डू नॉट यूज़ amit@gmail.com। प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट यूज़ दोस। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस क्रिएट करिए जहाँ पे आपका फुल नेम हो, एंड वंस यू डू दैट कंफर्म करें दोबारा, यू हैव टू टाइप दैट to ensure that you've typed the right email address, okay? then you select your country, India will be on the top, others है नीचे। if you are somebody who is an overseas student then you select others, otherwise India। mobile number, again be super careful when you type in the mobile number, क्योंकि उसी पे आपके OTPs आएंगे, उसी पे आपके सारे important informations आएंगे। so once you click on submit receive OTP, आपको ये captcha code डालना है। if the captcha code is not clear you can also refresh it। यहाँ पे refresh का option है, you can use that, ठीक है? cool। if you have any issues with this you can, if you are somebody with visual impairment तो आप किसी और को पूछ सकते हैं to help you type this up, ठीक है? kindly use OTP received on your email address and on the mobile number। तो आपके दो OTPs आएंगे, एक आपके मोबाइल पे आएगा जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, एक आपके ईमेल पे आएगा जो यहाँ पे टाइप करेंगे। I'm going to wait for the OTP to be received and once we do that we'll type that up। so the OTP is going to be a 6-digit OTP, only numbers, alphanumeric नहीं होगा, सिर्फ numbers होगा। you type that up, you click on validate, it will say OTP of mobile number has been validated successfully। you wait for that message, ठीक है? फिर आप आपके ईमेल में आए हुए OTP को टाइप करेंगे। so you go to your email, refresh if you haven't received that email yet,
क्योंकि आ जाता है इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आ जाता है. सो आई ऑल्सो रिसीव्ड. अगेन ईमेल में भी you will have a 6-digit OTP, numeric OTP only, and it will be different from the one that you received on your phone. तो phone और email पे अलग अलग OTP आता है. OTP of email ID has been validated successfully. So you click on OK. Now your email and your mobile number have been registered. Your name has been finalized. दोबारा से एक बार चेक कर लो name and date of birth if this is the final thing that you want to use. I hereby declare that I have carefully read the instructions. All particulars stated in the registration form are true. This is very, very important. It has to be true and correct to my best knowledge and belief. If any information provided is false or incorrect, I shall abide by the actions and decisions taken by CAT authorities. Do not take the risk of इन्हें क्या ही मालूम पड़ेगा, अपन बोल देते फिर देख लेंगे जैसा जो है, बाद में बात कर लेंगे, चाचा जी विधायक हैं समझा देंगे वो. प्लीज डू नॉट रिस्क एनीथिंग. जो भी आप टाइप कर रहे हो, जो भी आप एंटर कर रहे हो, प्लीज एंश्योर दैट एवरीथिंग इज कंप्लीटली ट्रू. यहाँ पे आपको दोबारा एक 7 कैरेक्टर कैप्चा टाइप करना होगा. प्लीज मेक श्योर दैट द कैप्चा इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव है कैप्चा. सो आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये एस आपको कैपिटल एस लग रहा है, स्मॉल एस नहीं लग रहा, तो यू कैन गो फॉर अ रिफ्रेश ऑल्सो. सो यू क्लिक ऑन री वेरीफाई. नीचे आपको दोबारा पूछेंगे. सो सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. दोबारा वो पूछ रहे हैं सो दैट यू डोंट मेस अप विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड द नेम एंड ईमेल एंड मोबाइल नंबर. ठीक है. नेम ऑफ द कैंडिडेट अगर आपने सही से टाइप किया है, चेक करो यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स. डेट ऑफ बर्थ अगर आपने सही से टाइप किया है, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. ईमेल एड्रेस, इफ योर ईमेल एड्रेस इज करेक्ट, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. कंट्री अगर आपका सही है, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. मोबाइल नंबर सही है, click on the checkbox. So once you've clicked on all the check boxes, it means that you've entered and displayed is correct. Then you click on submit. The moment you submit, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा. इफ यू आर समबडी हु इज एन ओवरसीज कैंडिडेट, देन यू विल रिसीव ओनली ऑन द registered email address. Okay. Now again, if you want, you can quickly check through everything. Keep double checking, triple checking things every now and then ताकि you don't make a mistake. Your user ID will be present here. Your user ID and password will be sent to your mobile number as well as your registered email address. Okay. So before you move ahead, एक बार check कर लो if you received the said information on your registered email address as well as on your mobile number. ठीक है. तो वो आप check कर लेंगे. That particular thing you will check, and once you've received it, you can go ahead to the application part. ठीक है. तो यहाँ पे आपका है go to application. Click on the go to application part and this is what you will see. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है again that I would recommend that you use only a web browser. आप PC या लैपटॉप पे fill करें and not using your phone. फोन्स पे भी होता है बट आई वुड एडवाइस अगेंस्ट इट. ठीक है. सो सेम है यहाँ पे. फिल इन ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू प्रोसीड. एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन मल्टीपल टाइम्स. लॉग इन कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भर रहे हो और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है एंड लेट्स से आपने रजिस्ट्रेशन तो चालू कर दिया, देन यू रियलाइज के ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है. सो यू कैन पॉज दिस. आप ना एक बार इफ यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, वो सेव हो जाएगा. यू कैन लॉग आउट, यू कैन लॉग इन एनी टाइम. ठीक है. वंस द पेमेंट इज मेड, बट वंस द पेमेंट इज मेड, आप एक बार पेमेंट कर दोगे तो फिर आपको कोई चेंजेस करने का अलाउड नहीं होगा. समटाइम्स दे ओपन अप अ विंडो फॉर करेक्शंस. करेक्शन के लिए एक विंडो ओपन करते हैं फॉर 2 or 3 days. That window will be there but you cannot change all the data. सारे डेटा आप चेंज नहीं कर सकते. सो आपको ऐसा रिस्क क्यों लेना है कि आप किसी विंडो का वेट करें, है ना. सो अगेन माई रिकमेंडेशन, प्लीज डू नॉट वेट फॉर एनी विंडो, प्लीज डू नॉट वेट फॉर एनी करेक्शन. जो भी आप टाइप कर रहे हैं शुड बी अकॉर्डिंग टू द राइट डॉक्यूमेंट्स. जैसे आपका नेम आपका 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए. ओके. सो नाउ वी स्टार्ट फिलिंग पर्सनल डिटेल्स. आपका कैंडिडेट्स नेम इज फिक्स्ड, ये नहीं मूव होगा, बट यहाँ पे आपको दोबारा से टाइप करना है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम अगर कुछ है एंड कैंडिडेट का लास्ट नेम. ओके. फादर या गार्डियन का नाम यहाँ पे डालना है. प्लीज अगेन एंश्योर दैट इट इज द राइट स्पेलिंग दैट यू आर यूजिंग. मदर
एंड मदर या गार्डियन का नाम डालना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू प्लीज इंश्योर दैट इट इज करेक्ट। यहाँ पे स्पाउसेस नेम का भी एक ऑप्शन है, बट अगर आप if you are thinking that you don't want to mention it, that's okay, and I'm assuming most of you all would be not married yet, तो ये तो मैटर नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे स्टार भी नहीं है। मूविंग ऑन, सो दिस इज योर पर्सनल डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू योर नेम एंड योर पेरेंट्स नेम। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ में अगेन डेट ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट एनी मोर। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन विल बी ऑन द टॉप, यू डोंट हैव टू स्क्रॉल डाउन। बाकी इफ यू आर somebody who is a citizen of some other country, then you can select here. If your citizenship, if your nationality is not mentioned here, then you have the option of others where you can type what other nationality you belong to. ठीक है, so we are I am an Indian, so I'm going to select Indian here. Now moving to category part, category में is where you will select if you are general, EWS, NCOBC, SC or ST. Okay, I hope here you can notice that you cannot select multiple categories. If you are somebody from EWS and also have NCOBC, आप दोनों में से कोई एक ही select कर सकते हो. You will not have the choice to select multiple categories. ठीक है, सो आई एम अ जनरल, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट जनरल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आस्क्ड अबाउट जनरल। हाउएवर अगर आप EWS से हैं, अगर आप EWS पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, उसका इश्यू डेट डालना है। एंड व्हेन यू गो टू दिस, आप देखो नोटिस करो कि आप जब ईयर में जाओगे 2022 के पहले नहीं जा सकते। सो दिस इज 2023, ये 2022 का ऑप्शन है बट 21 नहीं है। सो 2022 जैन तक आप जा सकते हो। सो द सर्टिफिकेट दैट यू हैव शुड बी न्यू एटलीस्ट लेटर दैन 2022 जैन के बाद बना होना चाहिए, उसके पहले का एक्सेप्टेड नहीं है। इफ़ यू हैव एन ओल्डर वन, प्लीज़ गेट इट रेन्यूड। ठीक है, प्लीज़ गेट इट चेंज्ड। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे कब दिया हुआ था, यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कैटेगरी, कौन से स्टेट कौन से यूनियन टेरिटरी में आप आते हो, जिस कैटेगरी के आप हैं, राइट। सो जिन्हें भी ये डाउट था कि सर मैं वैसे मेरा जो EWS का सर्टिफिकेट है वो मेरा लेट्स से ओडिशा का है, बट मैं अभी केरला में रहता हूँ, तो शुड आई पुट केरला या ओडिशा? नो, दिस इज स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कैटेगरी। जिस कैटेगरी में आप हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, वो किस स्टेट का है उसे सेलेक्ट करना है। तो मेरा अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट इज फ्रॉम ओडिशा, देन आई विल सेलेक्ट ओडिशा, आई विल नॉट सेलेक्ट केरला, क्योंकि राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन केरला। दैट डजंट मैटर फॉर द सर्टिफिकेट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे यू विल हैव टू एंटर सीरियल और एंट्री ऑफ द नंबर ऑफ द कास्ट। यस, यहाँ पे आपको डालना है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे स्टार नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। यहाँ पे सो फॉर EWS, क्योंकि यहाँ पे EWS डजंट रिलाई अपॉन कास्ट और ट्राइब, तो ये ऑप्शनल है। यस, यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग हियर। हाउएवर इफ योर कैटेगरी इज NCOBC, देन यू हैव द चॉइस ऑफ पुटिंग द सर्टिफिकेट इश्यू डेट। आपका यूनियन टेरिटरी भी आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ राजस्थान। सीरियल एंड एंट्री, सीरियल और एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट इज मैंडेटरी। तो ये डेटा आप कहाँ से निकालेंगे? सर सीरियल या एंट्री नंबर कहाँ से निकालूं मैं? इफ़ यू हैव इट ऑन द सर्टिफिकेट, गुड, वरना आप ये जो आई है यहाँ पे बाजू में आपको छोटा आई दिख रहा है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एक नया विंडो खुलेगा जहाँ पे यू हैव द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs, जो अपन ने रिजर्वेशन वाले वीडियो में भी बताया था, राइट। यू गो टू दिस, यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान है तो यू क्लिक ऑन राजस्थान, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी। उसका सीरियल नंबर यहाँ पे है, सी एंट्री नंबर सीरियल नंबर यहाँ पे है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर कास्ट या कम्युनिटी ये है तो आई विल एंटर 1। अगर मेरा कास्ट कम्युनिटी ये है, आई विल एंटर 4। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक विद दिस। इसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड making a mistake here, so please be very very careful, super careful. If you can get somebody who knows about this, sit next to you. ठीक है, आप अपने बाजू में बैठा के रखो, your parents or whoever who has an idea about this and can help you, guide you through it. ठीक है, तो ये हो गया for your serial and entry number। और यहाँ पे name निकालोगे, so name also you can find it the same place, वहीं पे आपको नाम भी मिल जाएगा।
ये रहा नाम, ये रहा एंट्री नंबर, ठीक है, cool. So this being done, this is for NCOBC. Similar case is for SC also. SC में you have state or union territory of category. You will select that, serial number and caste name. यहाँ पे date of certificate doesn't matter क्योंकि वो एक बार बन गया तो बन गया है ना. So date doesn't matter here, but yes, cool. कास्ट एंड ट्राइब नेम अगेन यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस आई पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कास्ट एंड एंट्री नेम दोनों मिल जाएगा. सो इफ़ यू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ये देखो कर्नाटका फॉर एग्जांपल, ये रहे सीरियल नंबर या एंट्री नंबर और ये रहा द नेम. ओके, यू कैन यूज दिस. टाइप करते वक्त ध्यान से स्पेलिंग करेक्ट चेक करके करना. ओके, सो दिस बीइंग डन, SC का ST का similar case is with ST also. Same thing would happen. If you click on I, you will get the state or union territory wise list मिल जाएगा आपको for all the states. ठीक है, सारे states के हैं यहाँ पे, numbers भी हैं. Please be very careful when you type these. Okay, तो ये हो गया. Now if you are somebody who belongs to a category, तो अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको, सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड NCOBC या SC या ST या EWS का सर्टिफिकेट. अपलोड स्कैन्ड कॉपी, स्कैन करके आपको उसका कॉपी अपलोड करना होता है. द कॉपी शुड बी इन अ PDF. देखो, इट शुड बी इन PDF ओनली. मैक्सिमम 300 KB का ही फाइल होना चाहिए. द स्कैन कॉपी दैट यू पुट अप शुड बी क्लियरली विजिबल. अगर ये आपके पास नहीं है, प्लीज़ अरेंज इट एज सून एज पॉसिबल. उसे स्कैन करवाइए. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू यूज़ योर फोन टू टेक अ फोटो अगर आप क्लियरली ले सकते हैं, एंड इट शुड बी अलाइंड प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि एक कोपचा कट गया, साइड में कुछ दिख रहा नहीं है, आपका नाम आधा नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं है, टू ब्राइट टू डल. प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो आप क्या करेंगे, इससे अच्छा गेट इट स्कैंड. ठीक है, सेफेस्ट है, स्कैन करवा लो और उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना. एंड एंश्योर दैट द फाइल इज लेस देन 300 KB. अगर 300 KB से ज़्यादा है तो उसे आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ करके उसे थोड़ा सा कंप्रेस करवा दीजिए. ठीक है, सो यू विल अपलोड इट हियर. कूल, चलो. सो आई एम गोइंग टू फिल इट अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन हियर. आई एम अ जनरल, तो मैंने जनरल सेलेक्ट किया. आई हैव नो अदर इन्फॉर्मेशन बीइंग आस्क्ड रिगार्डिंग द कैटेगरी. ठीक है, तो जो लोग जनरल में हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर जनरल बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट. आगे बढ़ते हैं. डू यू बिलोंग टू PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी एज पर RPWD एक्ट 2016. अगर आपको ये क्या एक्ट है नहीं पता, गो गूगल इट, यू विल फाइंड व्हाट द एक्ट इज. If you are somebody with a disability, you will select yes. अगर आप नहीं हैं तो you will select no. So if you do have a disability, click on yes. Is the disability measurable? Again, this is something that will be present on your certificate, या फिर आप अपने medical expert को पूछ सकते हैं इसके बारे में. Okay, so please select if it is measurable. If it is yes, it is measurable. No, it is not measurable. Okay, so if I select no, there's no other information being asked. UDID नंबर पूछ रहा है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ अप्रिशिएटेड, इट इज़ मोटिवेटेड, इट इज़ इवन बेटर encourage that you have a UDID number. UDID number होना is good, it is safe also, so you can enter the UDID number. अगर आपके पास नहीं है तो doesn't matter, but I would recommend that you get it as soon as possible. ठीक है, and then you type in the PWD category. तो यहाँ पे आपका कौन सा category में आता है, please you have a look at it or ask somebody to have a look at this very very carefully before going ahead and clicking on something. ठीक है, यहाँ पे अगर आपका disability measurable है, then according to the given situation, यहाँ पे देखो, यहाँ पे under PWD, let me quickly move to PWD part. तो यहाँ पे under PWD they have clearly mentioned that it should not be less than 40% disability. अगर आपका disability measurable है तो it should not be less than 40%. सर अगर मैं डालूँ तो क्या ही मतलब क्या ही डिफरेंस है, मैं 20% डाल के तो देखता हूँ. सो इफ आई पुट 20 एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, यू आर नॉट एलिजिबल एज अ PWD कैंडिडेट आ रहा है. Even if I enter 39, see, it still doesn't accept. It has to be at least 40 या 40 से ऊपर है तभी वो accept करेगा. Okay, so 40, 50, whatever that you put in, yes, again it should be legit. Let's say मैं 110 डाल रहा हूँ, see, it will not accept. Okay, please be very very careful and very
श्योर अबाउट व्हाट यू आर टाइपिंग और व्हाट यू आर आस्किंग समबडी एल्स टू टाइप, ठीक है. यूडीआईडी नंबर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पूछेगा. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आगे का देखो. डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्ट एट द टेस्ट सेंटर, येस और नो यू हैव टू टाइप इन देयर, ठीक है. येस या नो आपको टाइप करना होगा, उस हिसाब से आपको वो फैसिलिटी मिलेगी. Would you be using a scribe for the test? What is a scribe? A scribe is someone who will be writing the test for you. You will be dictating the answers. That person will be typing or writing the test for you, है ना. तो स्क्राइब अगर आपको ज़रूरत है तो फॉर फर्दर डिटेल्स यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट. अगर आप यहाँ पे येस क्लिक करते हैं तो एक नोट आता है जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट हैज़ टू कैरी स्क्राइब एफिडेविट अवेलेबल ऑन कैट 23 वेबसाइट एंड कैंडिडेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द स्क्राइब. स्क्राइब आप अरेंज करेंगे बट आपको स्क्राइब एफिडेविट लेके जाना है. स्क्राइब एफिडेविट कहाँ पे मिलेगा, ये रहा स्क्राइब एफिडेविट, राइट. दिस इज गोइंग टू बी इन अ पीडीएफ फॉर्म. आप इसे डाउनलोड करोगे, यू विल टेक अ प्रिंट ऑफ दिस, यू विल फिल इन ऑल द डिटेल्स हियर, गेट इट साइंड. ये आपका डिक्लेरेशन है, you will get it signed. Yes, here signature of the scribe होना चाहिए, everything. So you should by now have your scribe ready. Then get it scanned again. Fill करने के बाद scan करना and then upload करना, ठीक है. I will be putting no here. I do not belong to persons with disability. तो मैंने no डाला. That means कोई और information नहीं पूछा गया मुझसे. आगे देखते हैं. फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट, फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट, सेकेंड कोविड वैक्सीनेशन डेट. दिस वाज मैंडेटरी अंटिल लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, बट अभी मैंडेटरी नहीं है बिकॉज वी आर अ लिटिल अवे फ्रॉम ऑल दैट. तो अगर आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चलेगा. इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है. सो सेकेंड जो कॉलम था अपना अदर पर्सनल डिटेल्स, वो अपन ने भर दिया है केयरफुली. प्लीज़ रीचेक एवरीथिंग, करेक्ट भरा है, सही भरा है और सब कुछ भरा है नहीं भरा है. द नेक्स्ट थिंग यू हैव हियर इज कम्युनिकेशन एड्रेस. प्लीज़ एंटर अ वैलिड एड्रेस. एड्रेस वैलिड होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन के लिए. दिस एड्रेस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर आईडी कि सर आईडी प्रूफ मेरे लेट्स से मेरे गांव का उसमें एड्रेस है बट मैं वहाँ पे अभी नहीं रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. whatever is your communication address, जो भी आपको वो communication भेजेंगे in terms of letters और couriers और whatever, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है. सो एड्रेस लाइन 1 इज मैंडेटरी, 2 3 एडिशनल है. अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा है यू कैन फिल दैट अप, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू पुट इन माई एड्रेस नाउ. एड्रेस डालते वक्त प्लीज़ बी सुपर केयरफुल कि आप सही से टाइप कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि अगर आपने डोर नंबर गलत दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया तो देन इट विल गो ऑफ टू सम अदर पीपल, है ना. हालांकि मोस्ट कम्युनिकेशंस आर डन थ्रू ईमेल एंड मोबाइल बट स्टिल यू हैव टू सेलेक्ट द कंट्री. इफ़ इट इज़ इंडिया देन इंडिया. अगर कोई अदर्स है तो आपको कौन सी कंट्री है वो भी लिखना होगा, ठीक है. सो इंडिया. यूनियन टेरिटरी आपको सेलेक्ट करनी है या स्टेट आपको सेलेक्ट करना है. डिस्ट्रिक्ट यू हैव टू सेलेक्ट. डिस्ट्रिक्ट अगर आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, लेट्स से इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके नहीं दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन अदर्स एंड देन क्या डिस्ट्रिक्ट है आप वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है. और अगर दिया हुआ है देन सेलेक्ट दैट अलोन. सो दैट इज डन. टाउन या सिटी आपको टाइप करना है. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल दैट यू यूज़ द राइट स्पेलिंग फॉर द सिटी एंड द टाउन. पिन कोड ऑल्सो, ओके. पिन कोड भी आपको बराबर से टाइप करना है. अगर आपको पिन कोड में डाउट आ रहा है फटाफट गूगल कर लो या अपने पेरेंट्स को पूछ लो या कोई भी एड्रेस प्रूफ आपके पास है उसमें चेक कर लो कि आपका पिन कोड है. प्राइमरी ईमेल एड्रेस इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज दैट. ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना सेफ है. इफ समहाउ यू एंड अप लूजिंग योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस फॉर सम रीज़न तो आपको अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे मिलेगा, राइट. सो प्लीज़ एंश्योर आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप दे दें. यहाँ पे स्टार नहीं है but still it's safe to do so. Primary mobile number is fixed, you cannot change. So this is communication address, this is done. Next, look at emergency contact details. Emergency contact details कहाँ पे काम आता है. For example, you're at the center and something happens there, then this is the mobile number they'll be contacting. क्योंकि उनके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे ऐसे पर्सन का मोबाइल नंबर डालोगे जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे एंड विल बी एक्सेसिबल. डू नॉट गिव द नंबर ऑफ समबडी हु इज़ नॉट इन दैट पर्टिकुलर सिटी और एरिया,
क्योंकि फिर उन्हें ट्रैवल करके आना पड़ेगा इफ़ एट ऑल समथिंग हैपन्स, है ना. सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू टाइप इन somebody's नंबर जो somebody who can reach out to you, okay, somebody who they can reach out to, ठीक है. एंड जो भी रिलेशनशिप है दैट्स ऑप्शनल, बट इफ़ यू वांट यू कैन गिव, ठीक है. क्लियर. दैट बीइंग डन, अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के पास. सो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुका है, कम्युनिकेशन एड्रेस हो चुका है, अदर पर्सनल डिटेल्स हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स हो चुका है. वी आर डन विथ एवरीथिंग. द लास्ट थिंग इज नाउ यू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. तो अगर देखोगे यहाँ पे मेरे जो अपन ने जो सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से दे आर ओनली आस्किंग मी टू अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट साइज फोटो एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर. On the other hand, अगर if I am somebody who belongs to some category, तो वो category का भी सर्टिफिकेट मांगेंगे. See here, उसे भी आपको अपलोड करना है स्कैन करके. If I am somebody who is a PWD, तो वहाँ पर भी see I also have to upload a PWD certificate as well. ठीक है, please be super careful that you scan it and upload it. ठीक है, एंड अपलोड करते वक्त डिटेल्स चेक कर लो कि क्या आपने सही वाला अपलोड किया है. ओके, तो अब चलते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड स्कैन्ड कॉपी अपलोड के लिए. इसमें दिस इज नॉट क्वाइट सिंपल. इसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू यूज द राइट स्पेसिफिकेशन. तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, राइट. देखो फोटोग्राफ के लिए ये रूल्स हैं, ठीक है, ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है. अपलोड योर रीसेंट फोटोग्राफ. ऐसा फोटोग्राफ मत अपलोड करो जिसका आपके शक्ल के साथ कुछ लेना देना नहीं है. द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड, मतलब जितना रीसेंट हो सकता है बेटर. द फोटो प्रिंट शुड बी क्लियर एंड विद अ कंटिन्यूस टोन क्वालिटी. प्लीज़ इफ़ यू आर गेटिंग अ फोटो क्लिक्ड, आप अपने फ़ोन से मत क्लिक करिए. प्लीज़ डू नॉट बी लेजी एंड स्टिंजी हियर. आप एक फ़ोटो स्टूडियो जाइए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाइए. व्हेन यू गेट इट क्लिक्ड, प्लीज़ इंश्योर कि वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड ही हो, आपका पूरा शक्ल दिखे, आपका नेक दिखे और आपके शोल्डर्स दिखने चाहिए. मोरोवर इट शुड बी अ फ्रंट व्यू. आप यहाँ पे यू आर नॉट गिविंग अ पोज फॉर द फ्रंट कवर ऑफ एनी फैशन मैगजीन. तो यहाँ पे आपका लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल मत देना, फ्रंट व्यू होना चाहिए. eyes must always be open when you click the photograph. If you are somebody who has glasses, तो ensure या तो आप ग्लास हटवा के ले लीजिए फ़ोटो, या जब आप फ़ोटो लेते हैं then you have to ensure कि ग्लास में फ्लैश के कारण या लाइट के कारण ऐसा नहीं होने चाहिए कि आपकी आंखें ही नहीं दिख रही है. ओके, योर आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट बिकॉज योर रेटिना स्कैन विल ऑल्सो बी डन. ठीक है, आपका रेटिना स्कैन भी होगा, आई स्कैन भी होगा वहाँ पे. सो यू हैव टू इंश्योर दैट योर आईज आर प्रॉपरली विजिबल. ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द फोटोग्राफ पिक्सल्स में दिया हुआ है 1200 पिक्सल्स बाय 1200 पिक्सल्स, मतलब द फोटोग्राफ शुड बी इन अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर है ये, 1200 पिक्सल्स बाय 1200 पिक्सल्स. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ आस्क योर फोटो स्टूडियो गाइड, वो करके दे देंगे. ठीक है, या अगर आपके पास ऑलरेडी क्लिक की हुई फोटो है विच इज़ रीसेंट, देन आई विल शो यू हाउ टू चेंज द साइज ऑफ द फोटो. ठीक है, मोरओवर द फाइल जो साइज होगा वो 1 MB से नीचे होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 1 MB. ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर के 1 MB से नीचे होना चाहिए, बट द क्वालिटी ऑफ द फोटो शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड. ऐसा नहीं कि आप 1 MB से नीचे लेके आ जाएं बट फोटो पूरा ब्लर हो गया, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं इज ओनली JPEG एंड JPG, नो अदर फॉर्मेट. PNG, GIF कुछ भी आप अपलोड नहीं कर सकते, PSD नथिंग. ओके, JPEG या JPG में होना चाहिए. प्लीज अपलोड द सेम फोटोग्राफ जो आप आगे भी एडमिट कार्ड में फिक्स करेंगे. एडमिट कार्ड में जो फोटो आप फिक्स करेंगे एग्जैक्ट सेम फोटो होना चाहिए. ओके, ensure that the photograph is scanned properly using a scanner only. अगर आप स्कैन करवा रहे हैं तो यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं. वन, अगर आप फोटो स्टूडियो जाके करवा रहे हैं देन यू कैन आस्क देम, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी डिजिटल ओनली, लेटली तो सब डिजिटल ही हो रहा है, तो उनके पास उनके कंप्यूटर पे वो फोटो आएगी, है ना. तो उन्हें बोल देना कि ये 1200 पिक्सल बाय 1200 पिक्सल 1 MB से कम का साइज लेके आप मेरे को पेन ड्राइव में मेल में भेज दीजिए. yes, so you can directly use this. अगर ये नहीं है then you can get it scanned. तो या तो स्कैन करवा लेना या फिर
get the digital photo in your email address or in your pen drive या जहाँ कहीं पर भी, ठीक है. Please do not use mobile phone or other mobile applications to scan your photograph for the sole reason that it will not maintain that quality, और अगर टेढ़ा मेढ़ा आया तो वो accept नहीं होगा. I repeat this, they are being very open about this instruction. Please do not do this, ठीक है. Please ensure आपके फोटो पे कोई watermark ना हो. अगर आप लेट्स से कोई PDF स्कैनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उसका वाटरमार्क आ रहा है तो प्लीज़ इंश्योर आप वो वाटरमार्क हटवा दें, ठीक है. फॉर सैम्पल फोटोज़ में ये वाला जो PDF है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा एट द बॉटम ऑफ द डिस्क्रिप्शन, बट ये आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. सो यू यहाँ पे देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन है, यू क्लिक हियर. सो लुक एट दिस, यहाँ पे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला था वो सब कुछ है यहाँ पे. यू कैन रीवेरीफाई. यहाँ पे आपको सैम्पल फोटोज दिया हुआ है, ठीक है. दिस काइंड ऑफ अ फोटो इज नॉट एक्सेप्टेबल. वाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है. सी, यू सी हाउ टोन इज नॉट द सेम. अननेचुरल कलर है यहाँ पे. दिस इज द नेचुरल कलर, यहाँ पे अननेचुरल कलर है. तो कोई भी आपको फिल्टर लगवाने हैं, प्लीज डू नॉट. इट्स ओके टू लुक however you look in the passport size photo, वो मैटर नहीं करेगा. आपके टेस्ट के स्कोर्स मैटर करेंगे. डू नॉट गेट एनी एडिटिंग डन, डू नॉट गेट एनी फिल्टर्स एडेड, ठीक है. unnatural color will not be accepted. Any other background will not be accepted. It has to be white या off white. blue background वाले photos not accepted है. This one is not accepted because improper lighting, so you have to tell your studio guy to get the right kind of lighting, और उन्हें पता भी है because they are used to it. Whenever you click the photo, please ensure कि आपका face covered ना हो by anything, not your hair, not any accessories, nothing. अगर आप glasses पहनते हैं, if you can get a photo without it, good. बट नहीं आपको ग्लासेस पहनने हैं क्योंकि मैं टेस्ट में भी ग्लास पहनूंगा एंड आई डोंट वांट एनी रिस्क देयर, देन इन दैट केस यू एंश्योर दैट आपके आईज विजिबल होने चाहिए. कई बार ग्लासेस में जब आप फोटो लेते हैं तो फ्लैश के कारण या लाइट्स के कारण आपका आईज नहीं दिखता है. दिस फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है. नेक्स्ट, फेशियल एरिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल. ऐसा फोटो मत अपलोड करना. दैट्स व्हाई आई सेड रीसाइजिंग अगर आपसे नहीं होता है, please get it resized from the studio guy itself, studio persons itself. ऐसा अगर आप अपलोड करोगे it will not be accepted, ठीक है. ऐसे ग्लासेस आपको नहीं पहनने हैं. इफ यू आर वेयरिंग सच ग्लासेस प्लीज टेक देम ऑफ. टिंटेड ग्लासेस, डार्क ग्लासेस नहीं पहनने हैं, ठीक है. या सन ग्लासेस तो कतई नहीं पहनने. नेक्स्ट, नॉट फेसिंग द कैमरा, नॉट एक्सेप्टेबल. नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द कैमरा, नॉट एक्सेप्टेबल. कैमरा के अंदर देखना है और you have to ensure that you are facing the camera. Okay, moving on. Side face not acceptable. Straight pose not acceptable. जो भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो आजकल कौन ही फोटोज डालता है, बट इंस्टाग्राम वगैरह पे जो फोटोज आप डाल रहे हैं, that is good for you to get the likes, but you will not get the like from the right people there, ठीक है. मतलब आपको this will not be accepted as the right photograph. Yes. So this is something that you have to be very, very careful about. Please ensure that you have a separate folder जहाँ पे आप ये सारे important information रखेंगे. तो अब अपन अपलोड करने वाले हैं. All the instructions are repeated here. Yes. अब देखो, for example, if I upload the wrong data, ठीक है. तो अब ये मेरा जो पासपोर्ट साइज फोटो है, have a look at this. यहाँ पे देखो पासपोर्ट साइज फोटो है, ये 236 KB का है. दिस विल बी एक्सेप्टेबल क्योंकि 1 MB से कम है. ओके, 1 MB से कम है. यस, सो दिस विल बी एक्सेप्टेबल. अगर मैं 1 MB से ज़्यादा कोई भी फोटो डालता हूँ, आई जस्ट पुट वन रैंडम इमेज. कोई मैं एक रैंडम इमेज डाल के बताता हूँ आपको. ये फोटो अगर मैं अपलोड करूँगा, दिस इज मोर देन 1 MB, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. फाइल साइज एक्सीडेड, अलाउड फाइल साइज इज ओनली 1 MB, ठीक है. Let's say if I even upload something that does not have my face, 1 MB के नीचे अगर मैं बिना फेस का कोई फोटो अपलोड कर रहा हूँ, still it will not be acceptable. Invalid file type, it should not be PNG, it should be JPEG or JPG. और even if I upload something that does not have my face on it, ठीक है, let it be JPG. तो JPG मैं अपलोड कर रहा हूँ बट इसमें मेरा फेस नहीं है.
it will not be accepted, human face not present. So please be very very careful to put in the right kind of photo. ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, दिस इज द राइट काइंड ऑफ फोटो. वंस इट इज अपलोडेड, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, इसके अलावा भी आपको आगे प्रीव्यू दिखेगा. ओके, सो वंस इट इज अपलोडेड, व्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं. दिस इज हाउ योर फोटो विल लुक. नाउ गोइंग टू द पार्ट वेयर यू आर वरीड के सर ये साइज कैसे मैं खुद कर सकता हूँ क्या, फाइल साइज एंड फोटो साइज. यू कैन. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप image resize or something on Google. First few links will help you out with that. मैं पहले लिंक पे जा रहा हूँ. Here I just select an image, है ना, तो मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, the one that I want to be used. So let's say I'm just using the same one. ठीक है, तो ये मैं अगर अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे you can enter the pixels you want. तो यहाँ पे देखो पिक्सल्स का ऑप्शन है, 1200 बाई 1200 मेरा ऑलरेडी है. अगर आपका कोई भी दूसरा है तो यू कैन चेंज इट. रेजोल्यूशन रहने देना वैसे ही. फॉर्मेट JPG सेलेक्ट कर लेना. बैकग्राउंड डू नॉट चेंज एनीथिंग, ब्लैक कुछ मत करना, वाइट ही रहने देना. यू क्लिक ऑन रीसाइज होके आपका रेडी हो जाएगा. यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट. सी 1200 बाई 1200 पिक्सल का अगर आप करोगे तो द फाइल साइज विल ऑटोमेटिकली बी reduced. 1 MB से काफ़ी कम रहेगा वो. ओके, so please ensure guys use some or the other online tool to do this, वरना सबसे सेफ वही होगा that you get it done at the studio itself. ठीक है, तो ये हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, passport size photo should match your face. passport size photo will be attached on the hall ticket also. physically भी आपको glue लगा के चिपकाना पड़ेगा. so get copies of your passport size photos as well. एंड प्लीज एंश्योर के सारे मैच हो रहे हैं. आपकी शक्ल, द passport size photo that is uploaded on the application and the passport size photo that you will be sticking on the application. ठीक है, and then you have to do what, you have to upload a scanned copy of your signature. ठीक है, आपका signature आपको upload करना है. for this take a piece of paper, white paper. देखो again I'll show you the instructions that you have to keep in mind ताकि आपको issue face ना करें. clearly scanned signature, background white होना चाहिए. please do not do it on any colored paper. white background, blue या black pen use करिए. please do not use glitter pens or markers. blue या black pen use करिए and do the sign. ठीक है, once the sign is done, स्कैन कर लो उस पेपर को, स्कैन इट एंड इंश्योर के वो स्कैन का साइज जो है वो 80 KB या उससे कम होना चाहिए. एंड इट शुड बी JPEG या JPG फॉर्मेट अगेन. ठीक है, कोई भी दूसरा फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सच थिंग्स. and the signature that you're doing must match the one that is there on the admit card and on the self declaration. admit card में self declaration का एक part होता है नीचे जहाँ पे आपको उनके सामने साइन करना होता है. प्लीज एंश्योर दैट इट मैचेस. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑल्सो. मैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ. इट शुड बी मैक्सिमम 80 KB, नॉट मोर देन दैट, एंड JPEG JPG ओनली. ठीक है, सो आई हैव इट हियर. सिग्नेचर को भी मैंने अपलोड कर दिया है. सिग्नेचर मेरा ब्लर कर दिया है मैंने ताकि आप कोई कॉपी ना करें. नो किडिंग. बट येस, प्लीज एंश्योर वाइट बैकग्राउंड, ब्लू या ब्लैक पेन से हो. सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए. एंड वंस ऑल ऑफ दैट इज डन, यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन आएगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते. प्लीज व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिटिंग. सबमिट करने के पहले एक बार व्यू कर लो कि दिस इज हाउ योर सिग्नेचर इज गोइंग टू लुक लाइक ऑन द एप्लीकेशन. ठीक है, एंड प्लीज एंश्योर दैट यू हैव द सेम सिग्नेचर ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन. और ये रहा आपका फोटो. ओके, वंस दिस इज डन, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एक डायलॉग आएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, डन. सो फार अपन ने जो किया है, आई नो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई एम टॉकिंग, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फार अपन ने जो किया है वो सिर्फ पर्सनल डिटेल्स फिल किया है. नाउ वी मूव ऑन टू एकेडेमिक्स. have a look at the note given here. in case of grades या CGPA, अगर आपका स्कूल या कॉलेज grades या CGPA फॉलो करता है, the conversion to percentage, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में चाहिए. they do not want grades या CGPA, तो उसे आप कन्वर्ट करवाएंगे परसेंटेज में.
This will be certified by the respective board या university या institution. So you go to your school, go to your college, to the admin block या wherever and get this information from them कि what is the conversion, CGPA to percentage या grades to percentage, क्या conversion है. अगर कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, वी हैव नो सच स्कीम फॉर कन्वर्जन, तब क्या करोगे? देन यू कैन डू द कन्वर्जन ऑन योर ओन. ओनली देन यू कैन डू द कन्वर्जन ऑन योर ओन, वरना मत करना. ठीक है. CGPA इंटू इक्वलेंट मार्क्स कैसे करोगे आप? इक्वलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय डिवाइडिंग द कैंडिडेट CGPA, आपका जो भी CGPA आया, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल CGPA. तो आपका बोर्ड, आपका यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट का जो मैक्सिमम पॉसिबल CGPA है, 10 है, 9.8 है, 9.5 है, जो भी है, उससे आप डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई इट विथ 100. ये पहले भी बताया था मैंने. आई शो इट अगेन, दिस कैलकुलेशन हियर. ओके, हियर इज द कैलकुलेशन. अगर दिस विल अप्लाई ओनली एंड ओनली इफ योर इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव अ प्रोसेस फॉर कन्वर्जन. अगर है तो फिर दैट विल बी द प्रायोरिटी, अगर नहीं है देन यू विल यूज दिस. ठीक है. चलो, दैट बीइंग डन, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट थिंग. SSC या 10th या उसके इक्विवेलेंट का डिटेल्स डालना है. सो फर्स्ट यू विल हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड नेम, जो भी आपका बोर्ड है. इफ द बोर्ड इज नॉट प्रेजेंट हियर, क्लिक ऑन अदर बोर्ड्स एंड देन यू हैव टू टाइप इन द बोर्ड नेम. ठीक है. पैनिक मत करना कि सर मेरा बोर्ड क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज नॉट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल, इट्स जस्ट दैट दे फॉरगॉट टू टाइप दिस अप. ठीक है. इसमें डालना भूल गए, या मे बी इट वॉज अ रिसेंट चेंज या वॉट एवर. तो अदर बोर्ड्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना बोर्ड नेम टाइप कर सकते हैं. ठीक है. सो आई विल सेलेक्ट, अगर CBSE है, CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. प्लीज डोंट पैनिक कि सर CBSE भी नहीं मिल रहा. ये रहा. ओके. ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपने 10th या आपने SSC या उसका जो भी इक्विवेलेंट है, आपने कब कंप्लीट किया था वो डालना है. द मंथ एंड द ईयर विल बी रिटन ऑन द मार्कशीट ऑल्सो, तो आप मार्कशीट पे देख के कर सकते हैं. ओके. प्लीज एंश्योर ये सही सा आप कंफर्म करके चेक करके फिर ही करें. प्लीज डू नॉट रश इनटू इट, है ना. अपना मार्कशीट आप लेके रखो, हैव योर मार्कशीट नेक्स्ट टू यू, use that there. Okay, so 10th का marksheet, have a look at the marksheet. देखो नीचे लिखा होगा dated, क्या डेट पे आपको ये मिला है. Okay, so that date you have to mention. Clear? The next thing they're asking is maximum marks. Maximum marks का मतलब क्या है? आपका मैक्सिमम नहीं, मतलब पूरा जो बोर्ड का, लेट्स से 10th में आपने बोर्ड दिया या नहीं दिया, जो भी आपका 10th का एग्जाम था, उसमें कितना टोटल मार्क्स आ सकता है किसी को, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मार्क का एक पेपर है और 5 पेपर है, 100 मार्क का एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट है, सो 100 into 5, 500 विल बी योर मैक्सिमम मार्क्स. अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड 80 मार्क्स है, तो 480, 6 into 80, 480 विल बी योर मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करेंगे, ऑप्शनल, नॉट ऑप्शनल, सब कुछ. नॉट बेस्ट आउट ऑफ 3, बेस्ट आउट ऑफ 5, वो वाले सब नहीं है यहाँ पे. ओके, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टाइप दैट अप. मैक्सिमम मार्क्स यू हैव टू टाइप द एग्जैक्ट वन. आई रिपीट, एनी electives you have, see यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो, maximum marks inclusive of all subjects indicate the summation, मतलब total add करना है of all maximum marks of all the subjects including electives. I cannot stress this. This is including electives. You will not be allowed to change the data later. Please do not make this mistake. ठीक है. तो देखो यहाँ पे बोला है, अगर 5 सब्जेक्ट है with 100 marks assigned to each, the candidate should populate the maximum marks as 500. तो यहाँ पे 5 into 100, 500 आप टाइप करेंगे. ओके. नेक्स्ट है टोटल मार्क्स जो आपको मिले हैं, obtained, जो आपको मिले हैं. यस. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप एक बार कैलकुलेटर खोलो, ऐड करके चेक कर लो कि कितना टोटल मार्क्स आया है. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. टोटल मार्क्स लिखना है, थियोरी अलग, प्रैक्टिकल अलग नहीं, जो भी टोटल आया है आपका, है ना. तो आई विल क्विकली डू माई कैलकुलेशन. मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ. सो मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया है. आई हैव टाइप दैट अप. ओके. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एग्रीगेट. यस, हाउ डू यू कैलकुलेट एग्रीगेट.
जो भी आपको मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय जो भी टोटल मार्क्स है into 100. Aggregate is basically average, okay, in terms of percentage. यहाँ पे देखो, for computing percentage of marks obtained in SSC, the aggregate marks of all subjects, including additional subjects that appear in the mark sheet or grade sheet, would be considered irrespective of the board's regulation. But sir, हमारे बोर्ड में तो बोला गया था कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स ही एक्सेप्टेड होंगे, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स ही एक्सेप्टेड होंगे, 2 सब्जेक्ट्स एलेक्टिव्स है, 2 सब्जेक्ट कंसिडर्ड नहीं है. नो, यू विल हैव टू एंश्योर कि जो भी आपके मार्कशीट में है सारे सब्जेक्ट्स आप उसमें डालेंगे, सारे टोटल मार्क्स आप डालेंगे, सारे मैक्सिमम मार्क्स आप डालेंगे. एग्रीगेट कैलकुलेशन ये देखो, the aggregate percentage should be entered as an accurate value rounded off to 2 decimals. 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है. एग्जाम्पल ए, अगर आपका टोटल मार्क्स 600 है और आपको 421 मार्क्स मिले हैं, तो आप अगर 421 बाई 600 करोगे इंटू 100, यू विल गेट 70.1666. 2 डेसिमल्स तक आपको इसे 70.2 नहीं लिखोगे, आप इसे 70.2 नहीं करोगे, 2 डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करना है. तो ये जो 666 है विल बिकम 7, सो 70.17. ओके, अनदर एग्जांपल देव गिवन, 600 टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स आपका 416 है, तो 416 डिवाइडेड बाय 600 into 100 you will get what, 69.333. You will not write it as 69.3, you will not write it as 69, you will write it as 69.33. 2 decimal places, 2 decimal places, very very important. ठीक है, I hope this part is super clear to all of y'all. Yes, चलो ये हो गया. तो ये डेटा आपको यहाँ पे टाइप करना है. लेट्स से मैं थोड़ी मस्ती करता हूँ, मैं अपना जो मार्क्स है वो गलत लिख रहा हूँ. सी, प्लीज एंटर करेक्ट परसेंटेज. वो क्लियरली मेंशन कर देंगे कि आपका परसेंटेज कैलकुलेशन गलत है. ओपन अप द कैलकुलेटर, टोटल मार्क्स डालो, मैक्सिमम मार्क्स डिवाइड करो, इनटू 100 करो, जो भी फाइनल वैल्यू आएगा 2 डेसिमल तक आपको लिखना है. सो आई विल राइट डाउन माइन. ओके, परसेंटेज सिंबल नहीं डालना है आपको दोबारा, परसेंटेज ऑलरेडी ऊपर है. डोंट मेक दिस मिस्टेक जो आप नॉर्मली LRDI के क्लासेस में करते हैं. ठीक है, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स डालो, लेटर्स डालो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, डन. द सेम थिंग यू हैव टू डू विथ योर 12th या HSC ऑल्सो. अगर आपके पास 12th है या HSC है या डिप्लोमा कोर्स है, दैट इन्फॉर्मेशन यूल मेंशन हियर. 12th या इक्वलेंट है तो वो सेलेक्ट करोगे, डिप्लोमा या इक्वलेंट है, डिप्लोमा अगर है तो वो सेलेक्ट करोगे. ओके, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोथ ऑफ दीज केसेस. 12th में आपका बोर्ड का नाम पूछेंगे दोबारा. इफ यू डू नॉट हैव द बोर्ड नेम, सेलेक्ट अदर बोर्ड्स एंड डू इट. CBSE आप सेलेक्ट करेंगे. मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, अगेन चेक इट ऑन योर मार्कशीट. आपका जो मार्कशीट है उसमें जो भी मंथ एंड ईयर दिया हुआ है, यूज दोस. ओके, राइट. तो मैंने अपना देख लिया है एंड आई एम गोइंग टू यूज द वन गिवन इन द मार्कशीट. ठीक है, मार्कशीट में यूजुअली होता है डेट, उसे देख के आप डाल देंगे. ओके, दैट बीइंग डन, फिर आप डिसिप्लिन डालेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. अगर इन तीनों के अलावा कुछ और है तो अदर्स क्लिक करोगे और टाइप करोगे. अगर इन तीनों में से कुछ है तो वो सेलेक्ट कर लोगे. दैट्स इट. ओके, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव, सेम जो भी 10th में किया था वो सेम आपको यूज करना है. प्लीज बी सुपर केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, तो अगर सेम जिनके मार्क्स नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मेरे केस में आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जनरल स्टडीज, बट उसका कोई मार्क्स ही मेंशन नहीं है इन द मार्कशीट. ऐसा नहीं है कि मैंने वो नहीं दिया है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड अपेरेंटली, है ना. तो उसका मार्क्स ही नहीं मेंशनड है, सो आई विल नॉट बी टेक कंसिडरिंग दैट एट ऑल. ठीक है, समझ में आया है ना. आपके मार्कशीट में जिस किसी के भी मार्क्स हैं वो सब आपको मेंशन करने होंगे. ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स इन माय केस इज अगेन द सेम, 500, 100 into 5. टोटल मार्क्स ऐड करके डाल लो. आई एम गोइंग टू डू दैट. ओके, तो मैंने अपने टोटल मार्क्स डाल दिए हैं. मेरी नाक बचाने के लिए हमने इसे ब्लर कर दिया है. एग्रीगेट, अगेन द सेम थिंग,
टोटल मार्क्स obtained डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 करोगे. ओके, सेम लॉजिक अप्लाइज. प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग द रॉन्ग वन, क्योंकि वो बता देगा कि गलत किया है आपने. ठीक है, राइट एक्यूरेट वैल्यू. इंटीजर है तो ऐसे ही छोड़ दो, 0.0 डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर है तो पॉइंट डाल के आप जितना भी है डेसिमल डाल दोगे. ठीक है, ओके. रीड दिस अगेन. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द मार्कशीट. मार्कशीट में जिसके भी मार्क्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ आप इंक्लूड करोगे. ओके, सो इससे अपना HSC का हो गया. नाउ यू गो फॉर योर बैचलर्स डिग्री. ओके, बैचलर्स डिग्री की तरफ देखेंगे. बैचलर्स डिग्री के लिए देखो, यू हैव टू हैव 50% मार्क्स इफ़ यू आर जनरल EWS या NCOBC. अगर आप जनरल EWS या NCOBC में हैं तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए UG में, अंडर ग्रेजुएट में. ठीक है, वहीं पे अगर आप SC ST या PWD में हैं तो आपका 45 होगा. ये क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे? बैचलर्स डिग्री या उसका कोई भी इक्विवेलेंट होगा वो एक्सेप्टेड होगा. अगर आप फाइनल ईयर में होंगे वो एक्सेप्टेड होगा. अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस किया है जैसे CA CS ICWA या FIAI, ये भी एक्सेप्टेड है. ओके, बट सब में 50% मार्क्स मिनिमम होने ज़रूरी हैं. ओके, सो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, अगर आप yes डालोगे तो ये पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, करेंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अगर आप बोलते हैं नहीं मैं अब फाइनल ईयर में नहीं हूँ बट मैंने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की है. अगर मैं फाइनल ईयर में नहीं हूँ तो दो केसेस हैं, या तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली या फिर मैं प्री फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर में हूँ, है ना. तो इन दैट केस क्या होगा, यू विल नॉट बी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टेस्ट. आप टेस्ट भले ही दे सकते हैं इफ़ यू वांट, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल, है ना. तो आप क्या करोगे, if you are a final year then yes, if you are not in final year then no, if you've completed then yes. Okay, duration of the degree please confirm, check करके confirm करना. टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आपका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसमें मैंशनड होगा, या आपका यूनिवर्सिटी का जो लेटर हेड है उसमें मैंशनड होगा. अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है प्लीज़ चेक दिस विथ योर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, एडमिन ऑफिस में पूछो. तो मेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, but how do I know if my university is a deemed university? Yes, it is not a private या state या IIT या NIT या foreign है, central है. deemed के लिए specifically आप क्या check करेंगे, you will use this link. देखो, can you see this here? यहाँ पे एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे, you can use this deemed.ugc.ac.in. इस पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे पहले तो ये बोलेगा कि वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, बट एनीवे नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा, सी देर आर 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज. इसमें आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम या सेंटर सिटी का नाम जो भी है आप टाइप करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टाइप चेन्नई, तो चेन्नई में जो भी इंस्टीट्यूट्स है सबके नाम आ चुके हैं जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं. इनमें से मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है यस, तो मेरा यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, which means my university is what, deemed to be university. ठीक है, list of deemed to be university है ये. I hope this part is clear and you do not have any confusions or so. ठीक है, clear guys? So getting back to where we were, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है. स्टेट या यूनियन टेरिटरी डालोगे, कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी या यूनियन टेरिटरी में आपकी यूनिवर्सिटी आती है. यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम जब आप ढूंढने जाओगे अगर नहीं मिल रहा है, अगेन मेरा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है भाई. यस, शुड आई पैनिक? नो. व्हाट शुड आई डू? आई शुड क्लिक ऑन अदर्स. नीचे जाएंगे ऑल द वे डाउन, या आप टाइप कर लो यहाँ पे अदर्स. यू विल गेट अदर्स एंड देन यू टाइप इन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो मैं अपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करूंगा, कहाँ से लेके, फ्रॉम दिस वेबसाइट, है ना. इस वेबसाइट से मैं उठा लूंगा अगर ये डीम्ड है. अगर नहीं है देन आई विल बी यूजिंग द वन गिवन इन माय कॉलेज वेबसाइट और वॉट एवर. ठीक है, तो यहाँ से मैंने उठाया, आई एम गोइंग टू टाइप दैट हियर. अच्छा, कॉपी करना अलाउड नहीं है गाइस, कॉपी करना अलाउड नहीं है टेस्ट में भी एंड एप्लीकेशन फॉर्म में भी.
सो पेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू टाइप इट डाउन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट भी आपको डालना है यूनिवर्सिटी के साथ साथ। प्लीज़ इंश्योर आप स्पेलिंग्स वगैरह चेक करके डाल रहे हैं, ठीक है। देन यू गो टू डिग्री नेम। डिग्री नेम भी देख लो अगर आपका डिग्री प्रेजेंट नहीं है। मेरा बीई था, बीई इज़ प्रेजेंट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बट अगर नहीं है तो अदर्स भी ऑप्शन है, अदर्स भी ऑप्शन है, यू कैन यूज़ दैट एंड मेंशन कर लो क्या है आपके डिग्री का नाम। बीई, बीटेक, बीकॉम, ये सारे अवेलेबल है। देखो बीटेक इज़ अवेलेबल, बीकॉम is available, BCA is available, yes, BBA will be available। तो मेजर जो कॉमन वाले हैं वो अवेलेबल हैं, बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ अदर्स, ठीक है। कौन सा डिसिप्लिन है आपको सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने बीई करी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, बट मैं अगर एरो सर्च करता हूँ तो नहीं है। इवन व्हेन आई स्क्रॉल डाउन एंड चेक, एरो नहीं है। देखो AAC AG आ जाता है, उसके बाद एरो नहीं है। सो व्हाट विल आई डू हियर, पैनिक करेंगे नहीं, अदर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे किस पे करी थी अपन ने अपनी डिग्री। ओके, डन। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है। इफ इट्स इंजीनियरिंग यू सेलेक्ट इंजीनियरिंग, अगर नॉन इंजीनियरिंग है तो यू सेलेक्ट नॉन इंजीनियरिंग, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू मेंशन एनीथिंग फर्दर, ठीक है। सो इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। ईयर और मंथ और ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कब चालू हुआ था और कंप्लीशन कब कंप्लीट हुआ था। दिस इज सो दैट दे कुड गेट एन आइडिया ऑफ वेदर यू कंप्लीटेड इट इन द विद इन द गिवन ड्यूरेशन। 4 साल का कोर्स है कि आपने 4 साल में कंप्लीट किया या आपने ज़्यादा टाइम लिया कि आपने कंप्लीट नहीं किया। ओके, यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू चेक गाइस के जैसे अगर आपके ट्वेल्थ का आपने मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, फॉर एग्जांपल मैंने दिया है मई 2010, ओके। वहीं अगर मैं यहाँ पर मई या मई से पहले का सेलेक्ट करता हूँ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कमेंसमेंट में अगले साल का जो कमेंसमेंट है, अगला कोर्स का कमेंसमेंट, उसका अगर मैं उससे पहले प्रीवियस 12th के पहले अगर मैं डालता हूँ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, इफ़ आई क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, वो बोलेगा देखो मंथ और ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 12th इक्विवेलेंट डिप्लोमा मंथ और ईयर कंप्लीशन अंडर बैचलर डिग्री डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मई है तो मई के बाद का मंथ ही मैं डाल सकता हूँ। आई कैन नॉट इवन पुट मई, सेम प्रॉब्लम आएगा, जून ही मैं डाल सकता हूँ। ओके, मार्क्स अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, सेम थिंग। अगर आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इज यूजिंग सम स्पेसिफिक कन्वर्जन तो आप उस कन्वर्जन को यूज करेंगे। ओके, प्लीज बी सुपर केयरफुल अबाउट दैट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्दर आप टाइप करेंगे, फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट डू यू हैव और आर यू अंडरगोइंग ड्यूअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे यूजी पीजी एक सिंगल कोर्स के अंदर आ जाता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 years + 2 years या 3 years + 4 years + 2 years, डायरेक्ट 5 years का एक कोर्स हो जाता है जहाँ पे यूजी पीजी दोनों है। तो अगर आप येस क्लिक करोगे देन यू हैव टू एंश्योर कि आप मास्टर्स में, तो यूजी में यूजी वाला पार्ट यहाँ पे डालेंगे, मास्टर्स में आप मास्टर का पार्ट यहाँ पे डालेंगे। ओके, सो आई एम समबडी हु हैज़ नॉट गॉन थ्रू अ ड्यूअल या 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स, तो मैं नो क्लिक करूँगा। ओके, यस, ये देखो, इफ़ यू हैव ड्यूअल डिग्री विद बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स, बीटेक प्लस एमटेक या बीटेक प्लस एमएससी, एंटर द अप्रोप्रिएट डिटेल्स इन बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री सेक्शंस। ठीक है, सो हमने नो सेलेक्ट कर लिया है। मूविंग ऑन, क्लिक हियर इफ़ यू हैव मोर देन 1 बैचलर्स डिग्री। जिन लोगों ने एक से ज़्यादा बैचलर्स डिग्री करी है, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने बीकॉम भी करी है, एलएलबी भी करी है, या बीई भी करी है, बी फार्म भी करी है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। कोई भी 2 डिग्रीज अगर आपने करी है, 2 बैचलर्स डिग्रीज आपने करी है, तो यू कैन ऑल्सो मैंशन द डिटेल्स हियर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम फॉर्म आपको दोबारा भरे जैसा होगा। ठीक है, सेम देखो, आर यू इन द फाइनल ईयर, येस और नो, हैव यू कंप्लीटेड, येस और नो, सेम आएगा। यहाँ पे अगर आप येस डालोगे तो सेम जो भी पहले इन्फॉर्मेशन डाला था नई वाली दूसरी वाली बैचलर्स डिग्री का आप यहाँ पे डालोगे। सो इफ यू आर समबडी हु डज नॉट हैव अ डबल बैचलर्स डिग्री देन जस्ट डोंट क्लिक दैट। ओके, डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्री डिटेल्स, सी यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टू एंटर, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एंटर करें,
बट अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री के डिटेल्स हैं एंड इफ यू वांट टू एंटर देम यू कैन, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आई डोंट वांट टू मेंशन इट, देन डोंट, ईदर विच वेज। यस डालोगे तो यू हैव टू टाइप इन ऑल ऑफ दिस के प्रोग्रेस में है या कंप्लीटेड है, नो डालोगे तो दे विल नॉट आस्क एनीथिंग, ठीक है। यूजी का मैंडेटरी है टू एंटर, पीजी का ऑप्शनल है, ठीक है। आप हैव आर यू, सो यहां तक हो गया मास्टर्स का। इफ यू हैव एनी अदर प्रोफेशनल डिग्रीज एंड यू वांट टू मेंशन दिस, आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, दैट इज FIAI, यस नो, यस 50% से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 40 देता हूँ, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, ओके, इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, इट हैज़ टू बी 50, प्लीज बी केयरफुल। सो फाइनल एग्रीगेट मार्क्स डालोगे आप, यहाँ पे मंथ और कोर्स ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे अगर आप इसके अलावा FIAI के अलावा भी कुछ और मेंशन करना चाहते हैं, CA, CS, ICWA, यू कैन क्लिक ऑन यस। यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट बट एंश्योर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीनों हैं, CA भी है, ICWA भी है, CS भी है, but you can only mention one. Specify the following details for the completed professional degree in which you scored the highest percentage of marks. जिसमें भी आपको हाईएस्ट आया उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल CA में से, CA, ICW और CS में से मेरे को CS में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ CS का मेंशन करूँगा। यहाँ पे भले ही मैं टिक मार दूंगा कि हाँ मैंने तीनों किया है, बट मैं डिटेल सिर्फ CS का ही करूँगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिर्फ एक ही है तो बस वही एक डिटेल डालना है, अगर मैंने सिर्फ CA किया है तो सिर्फ वही डालूंगा, दैट्स इट, डन, ओके। सो आई डू नॉट हैव CA, CS, आई एम नॉट FIAI, सो ऑल ऑफ दैट इज डन। यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, अगर वो आगे चला गया मतलब कोई इश्यू नहीं है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली वाला मैसेज आ जाएगा। बट अगर वो आगे नहीं गया, दैट बेसिकली मीन्स कुछ ना कुछ एरर है, और वो बता भी देंगे क्या एरर है, ओके। और चलते हैं द थर्ड कॉलम, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए हियर यू डू नॉट हैव टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स गाइस, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा, GDPI के लिए जब बुलाएंगे तब आपको वो बताना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट लेजिट ही हो। तो यहाँ पे देखो नोट में देर आर अ फ्यू पॉइंट्स, लेट्स रीड दिस। एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन July 31, 2023। आप ये नहीं देखेंगे कि सर आज तो 9 अगस्त हो गया तो क्या मैं उसका भी मेंशन कर सकता हूँ, नहीं। July 31, 2023 तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू नॉट आस्क एनी डाउट्स ऑन दिस कि सर मैंने इंटर्नशिप करी थी, सर मैंने फ्रीलांस वर्क किया था, नॉट एक्सेप्टेड। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड। ग्रेजुएशन के बाद का जो भी आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करोगे। सर कॉलेज के टाइम में ट्यूशन्स लेता था, क्या मैं वो लिख सकता हूँ? सर कॉलेज के टाइम में पार्ट टाइम यहाँ पे वर्क करता था या फुल टाइम भी वर्क करता था, तो भी आप नहीं मेंशन कर सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, ओके। आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी है वही आप डाल सकते हो। नो पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, आर्टिकलशिप्स और प्री ग्रेजुएशन वर्क experience should not be entered and will not be considered as work experience. I cannot stress on this enough. Guys, part-time, project, internship, articleship, pre-graduation नहीं considered होगा। आपके ग्रेजुएट होने के बाद आपने अगर फुल टाइम कहीं पे काम किया है तो सिर्फ वही एक्सेप्टेड होगा, नथिंग एल्स। साइड प्रोजेक्ट्स आपने जो भी करे हैं, खुद का बिजनेस आपने जो भी चालू किया है, नन ऑफ दैट विल बी एक्सेप्टेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। प्लीज एंटर द एग्जैक्ट डेट यू स्टार्टेड वर्किंग। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? यू विल गेट दिस ऑन योर ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर पे आपको ये मिल जाएगा, जहां से आप जिस दिन से आपने काम करना चालू किया है एंड कब आपने एग्जिट किया है। एग्जिट का कहाँ पे मिलेगा? रिलीविंग लेटर में, रेसिग्नेशन में, जो भी आपका लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट ऑफ वर्किंग, दैट यू विल मेंशन, ओके। मोरोवर प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ डेज यू टेम्पररीली एग्जिटेड। लेट्स से सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप पूछा है,
राइट. दे डोंट केयर अबाउट द कंपनी के कौन सी कंपनी में काम किया आपने, विच इंडस्ट्री हैव यू वर्कड इन इज व्हाट यू विल बी मेंशनिंग, है ना. कौन सी इंडस्ट्री में आपने काम किया है वो. You have automobiles, you have banking, financial, durables, engineering, industrial, FMCG, IT, pharmaceuticals या healthcare, retail, telecommunications. अगर आपका इनमें से किसी में भी नहीं है तो फिर आप others पे क्लिक करोगे and you will specify which industry. ठीक है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कौन सी इंडस्ट्री. नाउ अगर आपका ऑटोमोबाइल्स में एक्सपीरियंस है, आप स्टार्ट डेट डालोगे. वट एवर स्टार्ट डेट, देखो 31st के बाद अगर आपने कहीं से भी स्टार्ट किया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. यू कैन गो ऑल द वे बैक टू एनी डेट, बट प्लीज एंश्योर कि आपके ग्रेजुएशन के बाद का ही एक्सेप्टेड होगा. ओके, सेम वे आप एंड डेट डालेंगे. अब लेट्स से मैं इसी इंडस्ट्री में था. फॉर एग्जाम्पल मैं 2020 अगस्त 15 से लेके, ठीक है, जुलाई 31 2023 तक मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ सर. मैंने इंडस्ट्री चेंज नहीं करी है, बट बीच में मैंने 2 या 3 कंपनीज चेंज करे हैं और मैंने बीच में कुछ ब्रेक लिया है. राइट, मैंने बीच में कुछ ब्रेक लिया है. राइट, तो वो जो ब्रेक आप डालोगे वो इन टर्म्स ऑफ डेज डालोगे. देखो, प्लीज एंटर एनी गैप इन वर्क एक्सपीरियंस इन डेज. आपको डेज में टाइप करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स या ईयर्स. ओके, डेज में. तो अगर आपने 1 महीना पूरा ब्रेक लिया है 30 डेज तो आप 30 टाइप करेंगे. आपने अगर 2 महीना ब्रेक लिया है 30 एंड 31 डेज का, तो 61 डेज आप डालोगे, नंबर ऑफ डेज आप डालोगे. बट अगर आपने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है, ब्रेक मीन्स नॉट हैविंग अ जॉब ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ ब्रेक. ठीक है, अगर आपने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, सर मैं एक ही कंपनी में काम कर रही थी, या मैंने जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में चालू किया था वहीं पे कंटिन्यू किया है विदाउट लीविंग एनी जॉब, देन जस्ट टाइप 0. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट अप द स्टार्ट डेट whenever I started. Please ensure कि it has to be after your graduation only. Okay, not before graduation. Yes. एंड डेट, अब एंड डेट तो है नहीं, मैं अभी भी इसी इंडस्ट्री में हूँ जिससे मैंने चालू किया था. सो आई एम गोइंग टू पुट दैट एज 31/7, क्योंकि उसके बाद अपन नहीं सेलेक्ट कर सकते. एंड आई एम नॉट समबडी हु इज ऑन अ सबैटिकल, या मैंने क्विट कर दिया. सो दैट्स ओके. ब्रेक इन एक्सपीरियंस, अगर कोई भी ब्रेक है तो आप वो मेंशन कर सकते हो. अगर आपने कोई भी बीच में गैप नहीं लिया है देन यू कैन एंटर 0. ठीक है, वंस यू डू दिस, देखो यहाँ पे यू विल हैव द एक्सपीरियंस इन डेज. तो मेरे को 3226 डेज का एक्सपीरियंस है. राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग मेंशन्ड हियर. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. ओके, मतलब क्या, स्टार्ट डेट से एंड डेट कितने डेज है, उसमें से 61 डेज का ब्रेक लिया है. सो आई विल गेट दिस डेटा. ओके, उसी को यहाँ पे मंथ्स एंड डेज में भी लिखा हुआ है. सेम थिंग को कैलकुलेट करके मंथ्स एंड डेज में भी लिखा हुआ है. ठीक है, you do not have to upload any joining certificate, appointment letter, offer letter, resignation या आपका relieving letter, कुछ भी experience letter, कुछ भी आपको नहीं डालना है यहाँ पे. that will only be used when you go for the admission process. यहाँ पे आपको no other documents to be uploaded. So I click on save and next. This is done. Data saved successfully आ गया. We are relieved कि that part is also done. Now the next thing is programs. Yes. Applicant can select any number of programs, but for each program selected, kindly select an interview city as well. Yes. Please note that this list of interview cities is tentative and the candidate's preference may be used if the institute holds this interview in that city. तो ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सिटी में आपने सेलेक्ट किया उसी में हो, but they'll do their maximum to do it on those cities. But अगर let's say है ही नहीं वहाँ पे, देर आर नो कैंडिडेट्स, तो एक कैंडिडेट के लिए दे विल नॉट टेक अप ऑल दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू इट इन अ डिफरेंट सिटी. सो दे विल कॉल यू टू वेर एवर इट इज हैपनिंग अदरवाइज. ठीक है, नाउ इफ यू आर लाइक सर मेरे को सारे कोर्सेस में अप्लाई करना है, जो भी मिलेगा चलेगा, अपने को क्या है, जो मिला चांदी चांदी, है ना. तो यू इफ यू क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, प्लीज कीप इन माइंड कि इसमें वैसे कोर्सेज भी हैं जिसके लिए मे बी यू आर नॉट रेडी. यस, जैसे EPGD, यस, जैसे डॉक्टरल प्रोग्राम,
yes, जैसे PhD, you may not be interested in a PhD, you may not be eligible for an executive MBA. एग्जीक्यूटिव एमबीए इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल. सो आपको अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, आपको अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कि सर मेरे को ये सारा करना तो मेरे को रिस्की लग रहा है, आई वॉन्ट टू चेक अगेंस्ट दोज वेबसाइट्स एंड देन कन्फर्म एंड डू, तो आप IIM अहमदाबाद के वेबसाइट में जाएंगे या सिंपली जस्ट टाइप दिस IIM अहमदाबाद PGP अगर आप डालोगे, इफ़ यू हिट इट ऑन एनी ब्राउजिंग एनी सर्च इंजन, तो वो आपको बता देगा कि IIMA का 2-year पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन मैनेजमेंट. Okay, so if you click on this, you will get all the possible information about the 2-year course. Okay, so please ensure that you check that before going ahead and selecting any random things. Okay, so what I am going to do is I'm only going to select 2-year courses in Blackie. ठीक है, तो मैंने IIM अहमदाबाद PGP सेलेक्ट किया. इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस देखो, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई. इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरे घर के बाजू में होता तो मैं दे देता थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा. सो सेलेक्ट विच एवर इज क्लोजर टू यू. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट बेंगलुरु. यू ऑल्सो हैव टू सेलेक्ट सेकेंड प्रेफरेंस ऑल्सो. तो मोस्टली वो ट्राई करेंगे फर्स्ट में करने का, बट इफ समथिंग डजंट वर्क आउट देन दे विल गो फॉर द सेकेंड. ओके, अगर दोनों नहीं हुआ तो वो जहाँ पे बुला रहे हैं वहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा अपन को. ओके, सो अपन ने अहमदाबाद किया. आई एम गोइंग टू गो फॉर बैंगलोर ऑल्सो. सो IIM बैंगलोर PGP 2-year कोर्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ. बेंगलुरु एंड हैदराबाद है, कन्वीनियंट है. चेक कर लेना, कोई कोई कॉलेजेस कोई कोई कोर्सेज के लिए सम अदर सिटीज़ विल ऑल्सो बी एडेड, सो प्लीज़ चेक. ठीक है, फिर कलकत्ता भी करूँगा. सो IIM कलकत्ता यहाँ पर है. आई विल सेलेक्ट द सेम 2 cities कन्वीनियंट फॉर मी. इसके बाद ब्लैकी में इंदौर है, सो आई सेलेक्ट इंदौर ऑल्सो. यहाँ पे देखो चेन्नई भी है. सो आई एम अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो टू अ सेंटर इन चेन्नई दैन टू ट्रैवल समवेयर एल्स, है ना. सो दैट्स अप टू यू, आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इंश्योर कि जब भी वो बुलाए यू शुड बी अप फॉर द ट्रैवल. ओके, ब्लैकी में से अपन ने B कर दिया, A कर दिया और C कर दिया. वी हैव K हियर, कोलिकोड. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कोलिकोड. चेन्नई नहीं है, सो बैंगलोर एंड हैदराबाद. मूविंग ऑन, लखनऊ है. आई एम लखनऊ का MBA. वी हैव बेंगलुरु, वी हैव हैदराबाद सेलेक्टेड, राइट. सो अपन ने क्या क्या सेलेक्ट किया है, B हो गया, L हो गया, A हो गया, C हो गया, K हो गया, I हो गया. ठीक है, इसके अलावा आई डोंट वांट टू गो फॉर एनीथिंग, बट अगर आप चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि सर कोई भी IIMs में न्यू ओल्ड बेबी एनीथिंग इज ओके, यू कैन गो फॉर इट. माइंड यू गाइस, अभी तक जो निटी का जो IIM मुंबई हुआ है उसका यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है. बैंगलोर में भी ऐसे B में भी नहीं आ रहा है, B फॉर बॉम्बे. M में भी अगर आप जाओगे तो यू डू नॉट सी मुंबई. सी देखो मुंबई नहीं दिख रहा है, L के बाद डायरेक्ट N है. सो प्लीज़ बी सुपर केयरफुल इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग अप टू दैट. थोड़ा रिसर्च करो, देखो उसमें क्या हो रहा है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म. बाकी सारे IIMs का है, उसका नहीं है. ओके, सो वंस दैट इज़ डन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. डेटा सेव सक्सेसफुली, रिलीव. Now this is super important. Please have a look at this. यहाँ पे आपको 6 प्रिफर्ड सिटीज सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको टेस्ट देना है. प्रोग्राम्स में जो आपने ये इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस दिया था कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद से कॉल आएगा तो फिर मेरे को बेंगलुरु में वो इंटरव्यू और GD के लिए बुलाएं तो बेटर रहेगा, या फिर हैदराबाद में बुलाएं तो बेटर रहेगा. दिस इज माई प्रेफरेंस गिवन फॉर द इंटरव्यू. बट ये जो है टेस्ट के लिए है कि मैं टेस्ट कहाँ पे लिखना चाहता हूँ, राइट. एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट, हेलो, applicant can select any 6 test cities as per preference from the drop down menu. After the last date of registration, one among the 6 preferred test cities will be allotted, which is subject to availability. In rare case, if an applicant is not allotted to any of the preferred cities, test applicant will be allotted to a nearby test city. Nearby to what? जो आपने एड्रेस दिया था उससे नियर बाय ट्राई करेंगे, या जो आपके प्रेफरेंसेस हैं
एड्रेस का भी नहीं है, जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके नियर बाय में ट्राई करें। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जाता है, बट कई बार क्या होता है, यू गेट सेकेंड या थर्ड अगर आप बहुत लेट फिल करते हैं, है ना। सो दिस इज प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो अदर सिचुएशन मैटर्स हियर एक्सेप्ट फॉर मे बी PWD, बट अदरवाइज नथिंग एल्स मैटर्स। तो प्रिफर्ड टेस्ट सिटी आप वही डालेंगे विच यू आर श्योर ऑफ कि आप उसमें चले जाएंगे, ठीक है। सो normally I give the test from Chennai, but this time I'm going to give it from the office, है ना, दिल्ली से अपन दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। So what I will do is I'll select all the places that is closest to the office area, है ना। तो first please go through all the test cities। यहाँ पे always focus on the fact that others नहीं है, अदर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर आप एक काम करिए, आप ना चिंच पोकली में मेरे लिए एक टेस्ट सेंटर डलवा दीजिए, मैं एक ही बंदा हूँ लिखने वाला, नो। या 150 टेस्ट सिटीज हैं, बट द वंस दैट आर मेंशन्ड आर ओनली एक्सेप्टेड, ठीक है, नथिंग एल्स। प्लीज बी सुपर केयरफुल अबाउट दैट, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू एंटर से गाजियाबाद, फिर for 3 I'm going to enter New Delhi. These are all the cities जहाँ पे टेस्ट भी है और closer to the center भी है, okay. Now I'm not sure how close they are to what, मेरे को जो लिस्ट दिया था मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज डन। प्लीज़ इंश्योर कि जो आप टेस्ट सिटीज़ डाल रहे हैं वो सिर्फ नियर बाय नहीं, बट ट्रैवल के लिए भी कन्वीनियंट होने चाहिए, ट्रैवल के लिए भी वो कन्वीनियंट होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू ट्रैवल देयर एज वेल, ओके। सो मैंने ये सेव कर लिया है। वंस दिस इज डन, हैव अ लुक एट दिस। प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स बिफोर यू प्रोसीड फॉर द पेमेंट गेटवे। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको वेरीफाई करना है, कोई आपने सर्टिफिकेट सही सा नहीं डाला है, प्लीज 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 एंश्योर यू डू नॉट पे, क्योंकि पे करने के बाद आप कुछ बदल नहीं सकते। आई एम ऑलरेडी रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी रिक्वेस्ट के सर अब मैं क्या करूं, मैंने पे कर दिया है बट मैंने मार्क्स गलत डाले हैं, मैंने पे कर दिया है बट मैंने एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं इंक्लूड किए हैं, मैंने पे कर दिया है बट मेरा SC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, मेरा EWS सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ गाइज डू नॉट एंड अप हैविंग दीज सिचुएशंस। प्लीज़ बी सुपर केयरफुल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर यू पे, ठीक है। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स गिवन बिलो बिफोर यू गो फॉर द पेमेंट गेटवे। अगर आप चाहो एक बार सारे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स और टेस्ट सिटीज देख लें and only then go for the payment part, okay. Look at this. For more details on the applicable registration fee, please refer to the FAQs or advertisement provided on CAT23 website. CAT23 website पे clearly दिया हुआ है about the application fee, okay. So if you go to information bulletin में आपके सारे courses हैं, ऑल द कोर्सेस, और उसके वेबसाइट दिए हुए हैं, रिजर्वेशन का दिया हुआ है, टेस्ट सेंटर्स का दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। ये रहा, पेमेंट ऑफ कैट रजिस्ट्रेशन फी इज गिवन हियर। सिर्फ SC, ST और PWD के लिए 1200 है। इफ़ यू आर जनरल, इफ़ यू आर EWS देन और NC/OBC देन द फीस इज 2400, ठीक है। क्लियर। प्लीज एंश्योर दैट यू मेंशन द राइट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स सो दैट ये आपका जो फी है वो एप्लीकेबल होगा। कूल। ओके, गेटिंग बैक टू द एप्लीकेशन फॉर्म। सो वंस दिस इज डन, आपको अब ऑप्शन मिलेगा टू पे। आप SBI पे या बिल डेस्क किसी से भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट योर पेमेंट गेटवे, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप SBI ePay से करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, बट वहीं पे अगर आप बिल डेस्क से करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। इफ़ यू आर यूजिंग अ UPI और बैंक अकाउंट, निल है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं रुपए वाला, निल है। बट अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड और 2000 तक आप पे कर रहे हैं तो आपका 0.40% लगेगा।
अबाउट 2000 अगर आप पे कर रहे हैं, तो मैं अगर 2400 पे कर रहा हूँ तो मेरे को 0.85% का ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे का, दिस विल बी द चार्जेस। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं एमएक्स या डाइनर वाला, तो 0.85 ही है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं HDFC या SBI का, तो 16 रुपीज़ फ्लैट विल बी द ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आप ICICI या एक्सेस चेक यूज़ कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर कि कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। डोंट पैनिक, अगर आप बिल डेस्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो दीज चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नहीं, मैं आई विल बी गोइंग थ्रू SBI ओनली, सो मेरा कोई भी चार्जेस नहीं है, नील इज द चार्जेस फॉर मोड्स ऑफ पेमेंट। ओके, सो क्लिक ऑन SBI e-पे, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा क्यों देना है, नहीं देना है। ओके, एंड इट डजेंट इवन गो टू द IAMS, इट गोज फॉर द गेटवे, तो ये बिल डेस्क को जाएगा जो भी पैसा। एनीवे, गेटिंग बैक टू द मैटर एट हैंड, डिक्लेरेशन ध्यान से देखो। आई हैव प्रीव्यूड the application form by clicking on the preview option application button and confirm that all the data reflecting in the preview are correct. Preview है यहाँ पे, this is how your application form will be looking. आपका फोटो और सिग्नेचर भी होगा इन द एक्चुअल एप्लीकेशन, यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। सो आपका यूजर आईडी, कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ईमेल आईडी, alternate email ID, मोबाइल नंबर, दिस इज योर पर्सनल डिटेल्स। उसके अलावा अदर पर्सनल डिटेल्स में यू हैव योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, में जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी, PWD में है नहीं है। देन इज़ योर कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या ये सही है, हैव यू एंटर्ड द राइट कम्युनिकेशन एड्रेस, प्लीज़ चेक। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या आपने सही दिया है। 10th का बोर्ड, ईयर ऑफ कंप्लीशन, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट क्या आपने दिया है, क्या आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी मार्क्स एंटर किया है, प्लीज़ एंश्योर दैट। सेम गोज़ फॉर 12th या डिप्लोमा, सेम गोज़ फॉर बैचलर्स, सेम गोज़ फॉर मास्टर्स। तो बैचलर्स में देख लो, यू आर नॉट इन द फाइनल ईयर क्योंकि आपने कंप्लीट कर दिया है, यू आर इन द फाइनल ईयर तो फिर आप येस करेंगे। कंप्लीटेड पे येस है, ड्यूरेशन इज़ 4 years, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्टेट है, नाम क्या है आपके यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम क्या है, डिग्री का नाम क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, डिसिप्लिन का नाम क्या है, कमेंसमेंट का, स्टार्ट होने का डे, सॉरी मंथ एंड ईयर, कंप्लीशन का मंथ एंड ईयर, और कितना मार्क्स मिला है आपको, एंड आर यू डूइंग अ 5 year थिंग। मास्टर्स मैंने नो दिया है तो कुछ भी डिटेल्स नहीं आया है। FIAI का मैंने नो दिया है, नो डिटेल्स। CA CS ICWA का नो डिटेल्स। वर्क एक्सपीरियंस में कौन सा इंडस्ट्री, कब काम करना चालू किया, कब एंड किया, कितना गैप है बीच में, दैट विल गिव यू द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, फिर आपने कौन से प्रोग्राम्स, तो क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने सिर्फ ब्लैक की ही सेलेक्ट किया है, तो ये 6 ही आ रहे हैं और ये कोर्सेस ही मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आपने और भी कोर्सेस सेलेक्ट किए हैं बेबी IIMs के, अदर कोर्सेस, अदर बी स्कूल्स, तो सब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी आपके इंटरव्यू सिटीज़ है आप एक बार चेक कर लेंगे। यस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, कूल। फिर आप जाओगे टेस्ट, स्टेट, सिटी प्रेफरेंस, कहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं उसका प्रेफरेंस जो आपने मेंशन किया है। These are the ones that I have mentioned and it is correct as per what I want to. And amount कितना है मेरा 2400 है। If you are from SC ST या PWD फिर आपका 1200 लगेगा। ओके, डिक्लेरेशन देखो, I have previewed the application form by clicking on preview application button and confirm all the data reflecting in the preview are correct. I hereby certify that the information given by me in this application form is true to my best knowledge. Please do not lie in the application form. Please do not by mistake also enter the wrong information. You will be in deep trouble for it. Okay. I certify that I fulfill CAT 23 eligibility criteria. I repeat, the criteria is here. 50% marks for EWS, General, NCOBC, 45 for SC, ST, PWD.
बैचलर्स डिग्री या इक्वलेंट होना चाहिए. अगर आप फाइनल ईयर में हो देन यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. CA, CS, ICWA, FIAI इज मैंडेटरी. अगर आप ये कर रहे हो तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए. यूनिवर्सिटी होना चाहिए या अफिलिएटेड बाय सम यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपका कॉलेज, या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी अगर है तो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम है. अगर आप फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ लिसन गाइस, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट यू ग्रेजुएट बिफोर जून और जुलाई 2024. अदरवाइज यूज़ अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, है ना. प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज विल ऑल्सो डू अगर आपका फाइनल डिग्री नहीं आया है. अगर आप फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं देन यू विल हैव टू यूज़ द फाइनल ईयर सर्टिफिकेट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है. तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे यू हैव फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, डाउनलोड दिस, फिल इन द डिटेल्स. प्लीज़ इंश्योर कि ये जो है ये कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए. दिस हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन, this form has to be submitted by candidates appearing. It has to be printed on the college or institution's letterhead. आप कोई नॉर्मल A4 शीट में नहीं, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड में इन्हें प्रिंट करवाना है आपको. सो यू कैन टेक दिस, आप आपके कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में अगर जाएंगे तो वहाँ पे यू कैन गेट दिस प्रिंटेड ऑन योर college letterhead. Yeah, if you go to your HOD also that will work. You can get it signed by your principal, HOD, registrar or director only. Yes, no other persons. Backlogs या arrears अगर हैं तो चलेगा, does not matter as long as they are cleared before the admission. Admission के पहले अगर आप cleared हैं, अगर आप graduate हो जाते हैं by this time, वे more than sufficient. CGPA कन्वर्जन का मैंने बोला है, जो भी यूनिवर्सिटी या स्कूल आपका बोलता है उसे फॉलो करना है. अगर वो बोल देते कि कोई भी ऐसा प्रोसेस ही नहीं है फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके करोगे. 10th और 12th के मार्क्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बट लेट्स डू अ क्विक चेक ऑन दैट. क्या 10th और 12th का भी कुछ आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे को 40% मार्क आए हैं, विल दैट मेक एनी डिफरेंस. सी नहीं, 10th में इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. 40% भी डालूँ नहीं आ रहा है, लेट्स से मैं 30% भी अगर डालूँगा तो भी कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है. आई एम नॉट गेटिंग एनी इश्यू हियर. सो 10th या 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके ऐसा कुछ भी नहीं है इन 10th और 12th. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर फॉर ऑल. ओके चलो, तो अपन ने प्रीव्यू देख लिया है. एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो इश्यूज, नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग इज A1. तब अपन ने दोबारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसे देख के चेक कर लिया है. नाउ विल बी सबमिटिंग इट. पहले डिक्लेरेशन करो, कैप्चा टाइप करो टू एंश्योर दैट यू आर नॉट अ रोबोट, या कोई बॉट नहीं है जो टाइप कर रहा है. यस, देन यू क्लिक ऑन सबमिट. तो जब आप सबमिट करोगे इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द पेमेंट गेटवे. यस, यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टॉप क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द बैंक डिटेल्स, बट या प्लीज़ चेक कर लो एक बार. ऑर्डर नंबर जो है इफ़ पॉसिबल कॉपी एंड कीप इट सो दैट आगे कोई भी अगर इश्यूज होते हैं यू कैन यूज़ इट फॉर योर फर्दर रेफरेंस. ठीक है, मर्चेंट नेम चेक कर लो, अमाउंट है, देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फ़ी, कुछ भी और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. ओके if you are going by debit card, credit card, please enter the details here. अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो कौन सा बैंक है उसमें से सेलेक्ट कर लो. and if you are going to use UPI ID, please enter the UPI ID very very carefully and not make any mistake during the payment of it. अगर आप पेमेंट करते हैं और बीच में आपका ये वेबसाइट अटक जाता है या स्लो हो जाता है, प्लीज़ डू नॉट कीप रिफ्रेशिंग, क्योंकि फिर वो पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट नॉट प्रोसेस्ड बताएगा. ठीक है, नाउ नॉर्मली अगर पेमेंट हो जाता है बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है या आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होता है, देन ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर सम टाइम. देखो आपके बैंक के थ्रू कोई अगर आपको मैसेज आया है रिफंड का, अगर नहीं आया है
then you can do one of two things. One, speak to your बैंक में बात करो, कॉल करो हेल्पलाइन पे, and tell them so and so thing happened, मेरा पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है, what should I do further, they'll guide you with that. अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से ही इश्यू है, आपका वहाँ पे नहीं कटा है पैसा, देन यू कैन गो अहेड एंड डू द ट्रांजैक्शन अगेन. बट अगर आपका वहाँ पे बोल रहे कि ट्रांजैक्शन पास हो चुका है, देयर इज सम इश्यू फ्रॉम द रिसीवर्स एंड, तब आप यू कैन यूज द, देखो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे देन यू कैन यूज दिस हेल्प डेस्क. यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, ये देखो, फॉर क्वेरीज रिगार्डिंग कैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, आप इन्हें कॉल करोगे. ये नंबर है टोल फ्री, इसे कॉल करोगे. द टाइमिंग इज मंडे टू सैटरडे 9 AM to 6 PM एक्सक्लूडिंग नेशनल हॉलीडेज. या आप यहाँ पे मेल ड्रॉप करोगे, yes cathelpdesk@imcat.co.in. आई वुड रिकमेंड के कॉल करने के पहले भी एक बार आप मेल ड्रॉप कर ले, ताकि वो जो इश्यू है आपका वो डॉक्यूमेंटेड रहे. प्लीज रिमेंबर, इसके अराउंड कोई भी डाउट्स है उसके लिए आप कॉल करोगे. बट अगर कोई भी एकेडमिक्स डाउट है, जैसे एलिजिबिलिटी पे, कैटेगरी पे या PWD सर्टिफिकेट पे, तब आप इस नंबर पे कॉल करोगे. राइट, दिस विल बी द नंबर दैट यू विल कॉल मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज फ्रॉम 9:30 to 5:30. This is the number, this is their email address. Please do not contact this. आप कैट सेंटर को कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है. Please note that CAT Center should not be contacted for any issue related to registration, application और payment processing. इसके लिए कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कॉल करेंगे. So imagine, so there are say every year around 2.5 lakh people give CAT. तो काफ़ी लोगों को डाउट्स होंगे, काफ़ी लोगों को इश्यूज होंगे, एंड दे विल ऑल बी ऑन अ कॉल विद देम, है ना. तो अगर कॉल गो थ्रू नहीं होता है, डोंट पैनिक, डोंट बी इम्पेशेंट, प्लीज़ टॉक टू देम पेशेंटली. आराम से बात करो, अपना प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझाओ, जो भी वो सोल्यूशन बोल रहे हो उसे सुनो और ध्यान से उसे फॉलो करो, ठीक है. डन. तो आई थिंक बियॉन्ड दिस विल एंड दिस सेशन. आपको अगर कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, ये सब डेटा मैंने इस PDF में नीचे डाल रखा है. प्लीज़ यूज़ ऑल ऑफ दीज फॉर योर पेरूजल, ठीक है. रिजर्वेशन के बारे में, EWS के बारे में, PWD के बारे में, फोटोग्राफ के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, सब कुछ क्लियरली मैंशनड है. Thank you so much for being a part of this. Again, like I said, if you have any issues with the registration, please use CAT का imcat.ac.in पे जो official website पे जो help desk है, उन numbers पे आप contact करें and get all your issues sorted. All the very best, guys. Cheers. Thank you so much.